There is something so unique about mothers. तो माताओं के बारे में एक चीज बहुत अद्भुत है। I don't know whether sometimes I reason a lot sometimes. कई बार हमारे भाई बहुत सोचते हैं। There is something unique, so special about women. औरतों के बारे में एक चीज बहुत अद्भुत है। Women is the foundation of life. जीवन का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो औरतें हैं। Without the foundation, this house can't stand. अगर इस घर की बुनियाद ना हो तो ये घर खड़ा नहीं रह सकता। That is just the word I can use to express women. तो ऐसे ही औरतों के लिए हम इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। But you may say, no, it's men. I'm not talking about the physical, maybe how huge or tall. I'm talking about the real foundation of the life is bestowed on women. तो हो सकता है कुछ लोग बोलते हो नहीं आदमी होते हैं जीवन की बुनियाद, परिवार की बुनियाद, लेकिन भाई हमारे भाई कह रहे हैं बाहर से देखने में नहीं कह रहे कि आदमी कितने तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन घर को एक औरत ही बनाती है। Men will be thinking, oh, we are the king. It's lie. It's the king. The power lies in women. तो आदमी सोचते होंगे कि हम तो राजा हैं, लेकिन ये झूठ। The power lies in women. जो सामर्थ्य है वो औरतों के अंदर। And people will be saying, how and why? और लोग बोलेंगे क्यों और कैसे आप ये कह रहे हैं? Sometimes I used to imagine, कई बार हमारे भाई सोचते हैं, if God created the world, परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, and everybody on the earth, you are only men. अगर आप सोचते कि दुनिया में सारे जब लोग परमेश्वर ने बनाए सारे आदमी होते तो And there is no way that this. कोई औरत ही नहीं होती तो God knew this would happen. परमेश्वर को भी पता है कि क्या होता। That within 100 years, there will be no person on the earth again. 100 साल के अंदर दुनिया खत्म। If only men are on the earth, अगर दुनिया में सिर्फ ही आदमी होते, within 100 years, there is no living being again who will be on the earth. 100 साल के अंदर दुनिया की सृष्टि ही खत्म हो जाती। I don't know how you think about it. हमें नहीं पता इस चीज को कैसे समझते हैं। Because there will be no proclamation. Life will never go on without women. क्योंकि आदमी होते तो, लेकिन जीवन आगे कैसे बढ़ता औरतों के We द्वारा। will just grow old and die. बस आदमी बड़े होते, बुढ़े होते और मर जाते। And they will say, God, human beings have finished. और कहते हैं अरे परमेश्वर दुनिया तो खत्म हो गई। And God say, what will I do? परमेश्वर कहता है मैं क्या करूं इसके अंदर? But God created man. परमेश्वर ने आदमी को बनाया। And he thought about this, I'm saying now. और जो हमारे भाई ने बोला ऐसा उन्होंने भी सोचा कि क्या होगा अगर सारे आदमी ही आदमी हो जाएंगे। And yes, God thought about it. God said, no, if I leave man in 100 years, there will be no human being on earth. तो परमेश्वर ने कहा सिर्फ आदमी रहेंगे तो 100 सालों में आदमी भी खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा धरती के ऊपर। He said, I must create a woman. तो उन्होंने बोला नहीं मुझे औरत को बनाना ही है। If I must have, like generation to generation, I must do something to make sure that human being does not finish on earth. तो परमेश्वर ने सोचा कि अगर मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया को देखना है तो मुझे सिर्फ आदमियों पे निर्भर नहीं रहना। That is why he brought women. और इसलिए उन्होंने औरतों का भी निर्माण किया। Man was a mistake, आदमी बनाना एक गलती थी, but women was not a mistake. पर औरत बनाना गलती नहीं थी। God thought very well before he created woman. परमेश्वर ने औरत को बनाने से पहले बहुत कुछ सोचा और फिर औरत बने। And didn't know that maybe God did not have time to think so much before creating man. पर आदमी को बनाने से पहले इतना टाइम नहीं था उनके Maybe पास। he said, I have made something strong. उन्होंने कहा चलो कुछ तंदुरुस्त सा बना देता हूँ। I have made some people so huge, they have muscles. इसकी कुछ मसल हो ऐसे आदमी बना देता हूँ। They can kill anything on this earth, on this planet. ऐसा कुछ बनाता हूँ जो बाकी को भी मार डाले, वो बना देता That हूँ। was what God was thinking. It was something so powerful. ऐसा परमेश्वर ने सोचा होगा। That is why he created man. इसलिए उन्होंने आदमी बनाया। But he forgot to put the engine on man. लेकिन आदमी में इंजन लगाना तो भूल ही गए। That is why he started to think so much. उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। Because he had made a very big mistake. अरे गलती हो गई आदमी बना के। That is why he took time and he thought about women. उन्होंने कहा नहीं अब इसे पूरा करने के लिए मुझे एक औरत को भी बनाना है। That's why he brought so important thing, that is women. और इसलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बनाई वो है औरत। Amen. आमीन। That is the world that we are today. ऐसी दुनिया में आज हम जी रहे हैं। And that is what we are celebrating today is the Mother's Day. और आज हम माताओं का दिन मना रहे हैं। They call them the queen, but I call them they are the kings. लोग कहते हैं कि औरतें रानी हैं, लेकिन हमारे भाई कह रहे हैं वो राजा हैं। If you see the history, I want to prove for you this. If you see the history in the Bible, I want to give you a secret. अगर आप बाइबल का इतिहास देखें तो हमारे भाई इसका रहस्य बताएंगे। The secret of communication
कि अगर बातचीत का रहस्य क्या है, lies only between God and women. सिर्फ परमेश्वर और औरत के बीच में ही है। Means I didn't see that God does not love all of us. तो हमारे भाई कह रहे हैं मुझे बहुत अजीब लगा सुनने कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम नहीं करते। But for me, I can say that it seems like God loves women more than men. हमारे भाई कहते हैं कि नहीं, औरतों से ज्यादा प्यार करते हैं Because He never give any secret of life to men. क्योंकि जीवन का रहस्य उन्होंने आदमियों को नहीं औरतों को दिया है। He handed over to women. उन्होंने औरतों को रहस्य दिया है। That was I was thinking, maybe God loves them so much. Why? तो हमारे भाई कह रहे हैं इसका मतलब जरूर औरतों से ज्यादा ही प्रेम करते हैं परमेश्वर, Because they are so special. क्योंकि वो अद्भुत भी है, They have the secret of life. क्योंकि उनके पास जीवन का रहस्य है। Women are more wiser than men. औरतें आदमी से ज्यादा समझदार होती हैं, But men looks women as if they are foolish. पर आदमी औरतों को ऐसे देखते हैं जैसे ये तो But बेवकूफ है। women are so wise. लेकिन औरतें आदमी से ज्यादा समझदार होती हैं। And sometimes you may be crying all your life. हो सकता है पूरे जीवन आप रोते ही रहें। A man may be praying for something with God, say, God, do this thing for me. हो सकता है आदमी पूरे जीवन रोता रहे कि परमेश्वर मेरे लिए कर दो कर दो कर दो। But when God was about to write something, लेकिन जब परमेश्वर कुछ लिखना था and the woman comes crying so much and screaming, और अगर औरत आती है रोती हुई और चिल्लाती हुई, God will say, man, wait first, woman, come, what is your problem? परमेश्वर कहते हैं आदमी तो साइड हो जा, पहले औरत की बात सुनने दे। So God is so near, they are so near to women than us men. परमेश्वर औरतों के ज्यादा करीब है आदमियों से। You must wait until God attends a woman. तो आदमियों को वेट करना पड़ता है, परमेश्वर पहले औरतों को डील करता They are है। so special to God. That's why I start to see, oh, say, God, why you love them so much? और हमारे भाई कह रहे हैं परमेश्वर से मैंने पूछा आप औरतों से ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? God can do wonderful things in there. When a woman cries, God also cries, you know. जब एक औरत रोती है तो परमेश्वर भी रोता है। Let's see. I want to take you to some. I want to show you something today. तो आइए कुछ देखते हैं बाइबल में। Let's go to Genesis chapter 3. उत्पत्ति तीसरा अध्याय। Let's go to Genesis chapter 3. उत्पत्ति तीसरा अध्याय। Let's read or take it little by little. Genesis chapter 3. We are going to read from 1 to 24 parts. We are going to read from maybe 1 to 5 first. 1 to 5, then we'll start. उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 वचन हम पहले पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Read verse 6. Read verse 6. अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Amen. You see here, the Bible says that the serpent was more cunning than any beast on the field. With the law God has made, and he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? The question is this. तो प्रश्न क्या है? God created man and he made him the king of the house. परमेश्वर ने मेरे आदमी को बनाया और उसे घर का राजा ठहराया। When the spirit comes, जब आत्मा आई, why did he go to be the woman first? तो पहले जब वो बुराई आई, मतलब सर्प आया, तो वो औरत से मिलने क्यों गया? वो आदमी से मिलने क्यों नहीं गया? In the Garden of the Eden, तो अदन की बगिया में Satan supposed to go and meet Adam तो शैतान को पहले जाके आदम से मिलना चाहिए था and talk to Adam. और आदम से बोलना चाहिए था। Then why did he go to the Eve? तो वो हवा के पास पहले क्यों गया? Why did he go to the women to talk to the women to convince the woman? क्यों औरत के पहले पास गया और आदमी के पास नहीं गया? Why? क्यों? Adam was the man, was the king, the first to be created. Adam was in charge of the garden. तो आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया और वो परमेश्वर की पहली संतान थी। So if any external visitor comes to the garden, it's supposed to be Adam who's supposed
be responsible to attend to the person. So- Then why did Satan left Adam and he went to Eve, the woman? क्योंकि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था, तो अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति या शैतान आता तो उसको पहले आदम से मिलना चाहिए था, तो हवा से क्यों मिला? Anybody has an idea why? क्या किसी के पास कोई जवाब है? Why to the man? Why the woman? क्यों औरत के पास पहले गया शैतान सर? Maybe Satan know that woman heart is very soft. They know the woman heart is very तो soft. शैतान को पता था कि औरतों का दिल ज्यादा मुलायम होता है। They know that the woman is very soft heart. That is where you see love. That is where you see caring. क्योंकि वहीं पर आप प्रेम और दूसरों का ख्याल रखना देखते हैं And they see understanding in them. और उनमें ज्यादा समझ भी होती है। Because Satan would have thought and said, no, Adam will never understand me. If I go to talk to Adam, maybe that one is busy in the bush looking for antelope and looking for ant. But he said, no, when he's busy looking for antelope, let me go and meet the woman and talk to him. तो सर्प ने सोचा कि ठीक है, जितनी देर आदम शिकार पकड़ रहा है, जानवरों के साथ घूम रहा है, चलो जाके पहले हवा के पास बात करता हूँ। Even because Satan knows that women have something special in them. क्योंकि सर्प और शैतान को भी पता था कि औरतों में कुछ अद्भुत होता है। Because the Bible said that he's very cunning. That means he's so intelligent. आप ये देखिए, बाइबल भी बताती है कि सर्प चालाक था, वो इतना समझदार था, तो वो औरत के पास पहले गया तो उसने कुछ तो सोचा होगा। That is why he said, no, if I go to talk to the man, it will be very, very difficult for me to succeed. तो उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं आदम के पास पहले जाऊंगा तो मेरे लिए सफल होना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो पहले औरत के पास चलूंगा। But if I go to talk to the woman, I think it's going to be something that will be successful. That is तो what कहता है, औरत के people पास are जाऊंगा trying. तो शायद सफलता के ज्यादा मिल सकती है मुझे। That is what happens today in every family. और आज हर परिवार में ऐसा ही होता है। If you want to get anything from any family, go to the wife and talk to them. अगर आपको किसी परिवार से कुछ भी चाहिए तो जाओ उस घर की औरत से या पत्नी के पास जाओ। If you want the family to listen to you, अगर आप चाहते हैं आपको परिवार की सुने, the son may be in charge, the father may be in charge, हो सकता है पिता या आदमी इस घर का इंचार्ज हो, but the power of command lies in the mother. लेकिन बोलने का सामर्थ्य तो औरतों में ही है। When the mother said, no, you will never marry her, अगर मम्मी बोलते कि उससे शादी नहीं करनी है, you will never come in the family. तो परिवार में आप नहीं ला सकते But उसको। when they said, no, if you like it, this is my wife. तो लेकिन अगर आप बोलते कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे पसंद है, Before the man will agree, the mother will go and take the wife and bring her home. लेकिन जो मम्मी है उससे पहले ही उसको बाहर निकाल देगी, अपनी पसंद की ले आएगी। Sanjay will say, no. And he say, if you like, go or not, this is your wife. तो मम्मी बोलेगी तुझे पसंद हो या ना पसंद हो, यही लड़की आएगी। The man will say, for 1 month, for 2 months, for 3 months. Then after that, you agree, you marry. तो आदमी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इंतजार करेगा, फिर बोलेगा But ठीक है। when your mother says no in the house, अगर मम्मी ने घर में नहीं बोल दिया nothing will move. तो कुछ नहीं होने वाला। Nothing else will go. When your mother says no, and you will not do this. अगर मम्मी ने बोल दिया कि ये नहीं करना है, Sometimes the men will become so tired, they will just run away from the house. तो कई बार आदमी बहुत थक जाते हैं और घर से ही भाग जाते हैं। When a woman wants to make the house hot for you, you can't afford to stay in that house. अगर एक औरत आपका घर में रहना मुश्किल कर दे तो आप घर में रह नहीं पाओगे। It's only a woman can give you peace. एक औरत ही जो घर में शांति भी ला सकती है। When a woman has peace, that means the house is in peace. अगर एक औरत शांति में है तो घर भी शांति में, अगर औरत शांति में नहीं है तो घर शांति But में है। when a woman is in problem, लेकिन अगर एक औरत मुश्किल में या परेशानी में है she's battling something, you never solve her problem. और अगर वो किसी चीज से परेशान हो रही है और आप उसकी परेशानी का हल नहीं दे रहे हैं, Now we don't peace in the house. तो घर में शांति हो ही नहीं सकती। From the day you step your foot in the house, जैसे आप घर में पैर रखेंगे, he will start to whine in your ear. आपके कानों में आवाज आनी शुरू हो You जाएगी। want to go to the bathroom to take bath. आप बाथरूम में जाना चाहते हैं You नहाने के will be लिए, talking while you're in the bathroom. बाहर से आवाज आएगी बाथरूम में क्यों हो? You want to eat food, he's whining in your ear. आप खाना खा रहे हैं तभी वो बोलती रहेगी। You want to sleep, also he's whining in your आप ears. सोना चाहते हो तभी बोलती You must रहेगी। solve the problem. क्योंकि आपको उनकी परेशानी का हल पहले निकालना ही That is पड़ेगा। why God cannot ignore any woman. जैसे आदमी इग्नोर नहीं कर सकता, परमेश्वर बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। Because God himself will not even have peace. क्योंकि परमेश्वर को भी तो शांति चाहिए। Amen.
Because men will complain and they become tired and they will go and rest. अगर आदमी भी सुनता थक जाता है, उसको भी आराम चाहिए। But women don't know what is rest when they are stressed. लेकिन औरतों के जीवन में अगर परेशानी है तो उन्हें आराम नहीं पता क्या होता है, उन्हें आराम चाहिए ही नहीं। Women is the type that they must succeed, they must achieve what they want. तो औरतें ऐसी होती है जो कहती है मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, And if they don't succeed what they want, और अगर जो उन्हें चाहिए उसमें सफल नहीं हुई there is no peace for them and there is no peace for you. Yes. तो उनके जीवन में भी शांति नहीं है, बाकियों के जीवन में भी नहीं होगी। So for you to have peace, you must attend to them. तो अगर आपको शांति चाहिए तो औरतों की सुननी पड़ेगी। Maybe these are the qualities that God sees in them तो परमेश्वर ने यही खूबियां औरतों के अंदर देखी that makes them so unique. और इसीलिए उनको अद्भुत बनाया। God loves women so much. परमेश्वर औरतों से प्रेम रखते हैं। God is the one that taught men to take women very serious and to listen to their plights. परमेश्वर ने भी आदमियों को यही चाहा कि औरतों की ध्यान से सुने और जैसा वो कहती है वैसे ही They करें, are so dedicated. वो अच्छे से काम करें। Women are, they are very trustworthy. औरतों पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। Amen. When a woman loves you, अगर एक औरत आपसे प्रेम रखती है, you just go and thank your God that when a woman loves you. अगर एक औरत आपसे प्रेम रखती है तो आप परमेश्वर के पास जाएं, उन्हें धन्यवाद दें। But the day that love moves away from them, और अगर एक दिन ऐसा आया जब औरतों के अंदर से आपके लिए प्रेम चला गया, go and buy your coffee. तो जाओ जाके कॉफी पियो, Because they might not kill you like with knife or anything, but what they will give to you is better you can bury yourself and you just go, because you will not withstand that. Yes. तो ऐसा नहीं है अगर एक औरत आपसे नाराज है तो आपने आपको चाकू नहीं मारेगी, लेकिन आपको इतना बोलेगी कि आप सोचो कि मैं मरी जाऊं। They are very special. तो औरतें बहुत अद्भुत होती हैं। God created them with care. परमेश्वर उनको बहुत सावधानी से बनाया, And that's what Satan saw. और यही शैतान ने भी देखा। Satan saw the uniqueness in them. शैतान ने देखा कि इनमें कुछ तो अद्भुत है। Women pay so attentive to something. औरतें हर चीज को बहुत ध्यान से करती हैं, And women are the type like they always want to try something. और औरतें ऐसी होती हैं जो हमेशा कुछ नया नया ट्राई करना चाहती हैं, And sometimes they take most of the risk in life. और सबसे ज्यादा रिस्क भी औरतें उठाती हैं, Women take risky. बहुत रिस्क उठाती हैं। Sometimes they don't know whether it may fail or not. उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं सफल होंगी कि नहीं सफल होंगी, They always take risky. वो कहते फिर भी करूंगी। But man sometimes calculates. लेकिन आदमी ऐसे नहीं होते। Man will always say, "Oh, what if I fail?" आदमी सोचते हैं अरे इसमें सफल नहीं हुआ तो क्यों करूं? But women sometimes they are not afraid of failure. लेकिन औरतें ऐसी होती हैं जो असफलताओं से डरती नहीं है। Because sometimes most successful men, when you see them, they have a very powerful women beside them. अगर आप देखें कि वो लोग, वो आदमी जो आज जीवन में बहुत सफल है, आप देखोगे उनके साथ में हमेशा एक औरत होती है जो बहुत मजबूत होती I है। can remember in those days when when that time we used to hear about the stories about maybe kindreds or villages. We hear about the warriors of those villages those तो times. हमारे भाई कह रहे हैं कि बचपन में जब मैं कहानियां सुनता था गांव के अंदर, जब बहुत लोग लड़ते थे, बहुत बड़े-बड़े सैनिक क्या करते थे, बड़े-बड़े योद्धा क्या करते थे, We find out that the warriors, the men, they fight because of women. तो योद्धा क्यों लड़ते थे? औरतों की वजह से। So men fight because they want to marry the best women. तो आदमी पहले के समय क्यों लड़ते थे? क्योंकि सबसे अच्छी औरत से शादी करनी होती, So that increases their power, their courage. और इससे वो ज्यादा बहादुर हो जाते थे। When a woman is beside you, अगर एक औरत आपके साथ खड़ी है you are very, very courageous to do what you तो want. आप में ज्यादा बहादुरी का, ज्यादा निडरता होती है मुश्किलों का सामना करने की। That is the secret that Satan found. और शैतान को पता था कि यही रहस्य है। Satan knows that if he went to talk to Adam, शैतान को पता था कि अगर मैं जाके आदम से बात करूंगा, then if the woman will come to stand beside Adam, और अगर औरत आगे आदमी के साथ खड़ी हो गई, and it will become very difficult for Satan तो to शैतान ने prevail. सोचा कि आदम को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So what he did, तो उसने क्या किया? he saw that Adam and Eve was separated. उसने देखा कि आदम और हवा उस समय अलग-अलग हुए हुए थे। Adam was hunting in the Garden of Eden. आदम उस समय शिकार पे गया हुआ था। Men will love bush meats, like antelopes, like we want to catch bush meat. कई आदमियों को शिकार करना बहुत पसंद होता है।
And Eve was busy looking about the fruits in the garden. और जो हवा थी वो उस समय पेड़ों के फलों को देख रही थी। So Satan timed them and know that now they are not together. तो शैतान को पता था कि अच्छा इस समय ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। So quickly I have to approach the woman. तो इसी समय मुझे फटाफट भाग के हवा के पास जाना है। Because he knows that when he goes to Adam, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं पहले आदम के पास चला गया, the woman will come and stand beside. तो औरत भागती हुई आदम के पास पहुंच जाएगी। And it will be very difficult for him to break them. तो शैतान को आदम और हवा को अलग करना और आदम को बहकाना मुश्किल So हो जाए। look at them when they are separated. तो उसने देखा कब आदम और हवा अलग-अलग जगहों पर है। That is why Satan was able to succeed. और तभी शैतान सफल हो पाया। If you watch our homes today, अगर आज हम अपने घरों को भी देखें, you will find out आप देखेंगे that problem comes when husband and wife when they are separated. एक घर में परेशानी तभी आती है जब आदमी और औरत पति पत्नी अलग-अलग होते हैं। Then it becomes so easy for people to feed either the wife with different things in her heads. तो जब पति पत्नी अलग होते हैं तो बाहर के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है आदमी और औरत के कानों को भरना। People began to feed wrong information to the लोग wife. गलत-गलत जानकारियां औरतों या पत्नियों को देते हैं That is why things begins to go और apart. चीजें खराब हो जाती हैं Because they are separated. क्योंकि वो अलग हैं। So this person are prone to attack. तो ज्यादा आसान हो जाता है आक्रमण करना। People begin to give information which are not true. लोग आपको ऐसी जानकारी देंगे जो सच नहीं होगी, But when they are together, लेकिन जब पति पत्नी साथ में होंगे you will be very afraid to talk to both of them तो together. बाहर के किसी आदमी के लिए आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Because you can't talk about the wrong of this person in front of this person. क्योंकि आपको पता है कि जब पति पत्नी एक है तो आप एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते You किसी के साथ। cannot gossip something about this person over this person. आप एक इंसान की चुगली दूसरे के सामने कर ही नहीं पाओगे। But you have the access when you break both of them. लेकिन आपको पता है कि जब पति पत्नी अलग है तो आपको आक्रमण करना बहुत आसान है। That is the mistake that Adam did and Satan used it to. और आदम और हवा के अलग होने की वजह से शैतान ने इसी चीज का फायदा उठाया। If Adam have seen the time that Satan came to talk to, अगर आदम को पता होता कि किस समय हवा अलग हो रखी है और शैतान आके उसको परेशान कर रहा है and he left whatever he was doing and started to run and come to और वो her. अपना काम छोड़ के शिकार छोड़ के हवा के पास आ जाता उसे बचाने के लिए, Maybe who knows, Adam will not have fallen. तो क्या पता आज आदम ने पाप नहीं किया Because होगा। I know that if it is Satan, if it is Adam that Satan came to me, the woman must rush to come and find what is the problem. तो अगर पता होता कि क्या परेशानी है तो शायद हवा भी आदम के पास भाग के आ जाती, The woman don't take things so lightly. कि औरतें आसान चीजों को इतना आसानी से नहीं लेती हैं। When something happens to you, your mother begins to cry. आपको पता है कि अगर छोटी सी परेशानी होती है तो आपकी माता या आपकी पत्नी रोने लग जाती है। Your father may not take it so serious. आपके पिता इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते होंगे। Your father may be annoyed because your mom is crying. आपके पापा परेशान होते हैं कि अरे मेरी बीवी रोती क्यों है। Your father may say, please don't disturb us, don't cry. वो कहते हैं कि क्यों रो रही है, भाई रो मत। But your mother is so painful. लेकिन आपकी मम्मी बहुत आसानी से रो देती होगी, He takes little is so serious. क्योंकि वो छोटी छोटी चीज को दिल में ले लेती है, Everything matters for them. क्योंकि छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। But men takes it so lightly. लेकिन आदमी लोग बहुत हल्के में लेते हैं। That is the difference between us. यही फर्क है आदमी और औरत में, They are the foundation. कि औरतें ही बुनियाद हैं। That is why even Satan knows that. और शैतान को भी ये चीज पता थी। Satan knows that if I want to bring down this building, तो शैतान को पता था कि अगर मुझे इस इमारत को गिराना है I have to start cutting the foundation. तो मुझे पहले जड़ों को तोड़ना He पड़ेगा। knows if I want to bring down Adam, उसे पता था कि अगर मुझे आदम को मारना है the foundation is the wife. तो बुनियाद उसकी पत्नी है। To those who don't know today, तो जो लोग ये नहीं जानते आज your wife is a foundation. कि आपकी पत्नी आपकी बुनियाद है, Everything you have lies in your wife's hand. कि जो भी चीज आज आपके पास है वो आपकी औरत के हाथ में है। Your life is in your wife's hand. आपका जीवन भी आपकी औरत के हाथ में है। When it's very difficult for the enemy to get you, it is very easy for your wife to take you away. कि अगर शैतान आप पर आक्रमण करना चाहता है तो आपकी पत्नी आपको बहुत आसानी से बचा सकती है, They are the foundation of everything that we have. क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ है वो बुनियाद औरत ही है, They are the king. क्योंकि वही राजा है। When they support you, you will not lose. क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपको सपोर्ट कर रही है तो आप कभी गिरोगे नहीं। When they stand beside you, you become more courageous. अगर वो आपके साथ खड़ी है तो आप ज्यादा निडर होगे। When they say no, they stand
firm, you will never fall. अगर वो कहने की चीज को नहीं कह रही है तो आप भी निडरता से खड़े रहोगे। That is so powerful. We should take our women so seriously. तो हमें अपनी औरतों को, अपनी माताओं को, पत्नियों को बहुत ही सीरियसली लेना We चाहिए must accord them the respect that they deserve. और जिस इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो इज्जत उन्हें देनी चाहिए। Because people today, they think that women is nothing for them. But God knows that without women, this life will never continue. क्योंकि आज के लोग ये शायद सोचते होंगे कि औरतें कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हर चीज की बुनियाद औरत है। Amen. Amen. Let's read down. तो हम आगे पढ़ते हैं 7वें वचन से 17। Yes, I want you to quote it. Read from 9 now. हम 9 से पढ़ते हैं, 3 का 9। From 9. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाकर तब मैंने ये खाया। Amen. Amen. When they ate the forbidden fruit, जब उन लोगों ने उस फल को खाया जिसे नहीं खाना चाहिए था, to tell you the love of God for women. आप देखें परमेश्वर का प्रेम औरतों के लिए। God knows and He knew very well that women is the person that committed the atrocity. परमेश्वर को पता था कि पहले हवा ने फल खाया है, मतलब पहला पाप उसी की ओर से हुआ है। But when He was scolding, He did not scold the woman. लेकिन जब परमेश्वर ने डांटा तो हवा को नहीं डांटा, लेकिन आदम को डांटा। First, God summoned Adam. उन्होंने आदम को डांटा, उसके पास गए। God knew very well परमेश्वर को पता था अच्छे से that even Adam was innocent. कि आदम ने कोई गलती नहीं करी, उसको हवा ने Maybe दी, he उसने was खा लिया। there eating the meat of antelope. हो सकता है वो तो कुछ शिकार कर रहा होगा, Suddenly God called पर परमेश्वर ने बुलाया and started scolding at Adam. और आदम को डांटने लग गए He said, "Where are you? कि कहाँ पर हो तुम? Why are you naked?" क्यों तुम नंगे हो? Then he began to explain. तो आदम ने कहानी बतानी शुरू करी। But you told me that God did not know that it was Eve that made this. तो क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि पहले हवा ने फल खाया है? But God knows very well. परमेश्वर को तो पता ही होगा, That is why He gave the blame to Adam first. लेकिन उन्होंने फिर भी आदम को बोला कि तुमने गलती करी है। But when Adam said it was Eve that made me to commit the तो sin, परमेश्वर को आदम ने क्या बोला कि मैंने फल नहीं खाया, पहले मेरी पत्नी ने मुझे फल दिया, मैंने इसने फल when खाया। God asked Eve, "Why did you do that?" परमेश्वर ने बोला कि तूने फल क्यों खाया? Eve said it was Satan. और जब हवा से पूछा गया तो हवा ने बोला मुझे सर्प ने दिया था। But God did not go any further, even to say a word to the woman. पर परमेश्वर ने फिर औरत को कोई जवाब नहीं He did not scold her दिया, again. उसे डांटा भी नहीं He did not say, "Why did you allow this to happen?" और ये नहीं बोला कि तूने क्यों सर्प की बात सुनी। You know, if it is nowadays this kind of thing, somebody will knock the woman on the head. लेकिन अगर आज के समय में औरत ने कोई गलती करी है They तो will आदमी slap her like कोई anything. आदमी उसको थप्पड़ भी मार सकता है, डंडा भी मार देगा You made us to fall. कि तुमने गलती की, तुम्हारी वजह से मैंने भी पाप You किया, must leave. You must go. निकल जाओ इस घर से। आजकल के आदमी यही बोलेंगे, God was so lenient. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। God loves them so much. परमेश्वर औरतों से प्रेम रखते हैं। God never sometimes, want to punish them because of their mistakes. परमेश्वर कई बार उनकी गलतियों की वजह से उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहते, Because God knows how easy for them to accept what they did and be able to do more. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि औरतें कितनी आसानी से अपनी गलती मान जाए। Women are sincere when they tell you they repent than men. परमेश्वर आदमियों के लिए पश्चाताप करना मुश्किल होता है, लेकिन औरतें अगर कोई गलती करती है तो अपनी गलती मान लेती हैं। Women are more faithful in life than men. पर औरतें ज्यादा विश्वास योग्य होती है आदमियों से। So God sees that faithfulness in them. परमेश्वर ने उनके अंदर वो विश्वास योग्यता देखी And He knew that if Adam would have coordinated Eve, कि परमेश्वर को पता था कि अगर आदम हवा के साथ होता it wouldn't have happened. तो ऐसा नहीं होता। But although when God gave the punishment to all, पर परमेश्वर ने जब उनको पनिशमेंट दी, the punishment was for all. सबके लिए थी, It was for men, it was for आदमी के women, लिए it भी थी, was for औरत Satan. के लिए भी थी और सब के लिए भी थी।
But at the end of the day, पर दिन के अंत में you will understand that women are so special to God. आप ये समझें कि परमेश्वर के लिए औरतें बहुत ज्यादा अद्भुत हैं। Yes, this is the fall of the Garden of Eden. हाँ, हम समझते हैं कि उनकी वजह से अदन बगिया से उनको निकाल दिया गया, उन्होंने पाप किया। It means that it's the fall of the power of God. तो इसका मतलब जब उन्होंने गलती करी तो परमेश्वर का भी सामर्थ्य टूटा उसके। It is a very big disaster that happened to एक humanity. बहुत बड़ी चीज हुई जो इंसानियत को जिसने खत्म करने की कोशिश की। But God did not kill woman. पर परमेश्वर ने औरत को मारा नहीं। God did not lay so blame on them. परमेश्वर ने उन पे कोई ब्लेम भी नहीं लगाया। God took up the challenge पर परमेश्वर ने क्या किया and said, I will fight on to the day. कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। Let's also go. I want to prove something again. Let's go to Matthew. Let's go to Luke chapter 1, verse 26. Luke. The Gospel of Luke. Luke chapter 1, verse 26. लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 26 to 38. Yes. 26वां वचन। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। Amen. That is to just wait. Wait, let me explain. Here we saw about that was the spirit of Satan. तो आप देखिए शैतान की आत्मा थी, But here also comes the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा भी होती है। Again, the first person to give the message of the birth of Jesus was a woman. तो पहला जो मनुष्य था जिसने यीशु के जन्म की जिसको जानकारी दी गई वो एक औरत थी। This is the secret of life. यही जीवन का रहस्य है। And again, Jesus was about to born. और जब यीशु का जन्म होने वाला था, Then the meeting has been done in heaven. तो स्वर्ग में मीटिंग हो चुकी थी। God called all the cabinets. परमेश्वर ने सब मंत्रियों को बुलाया होगा And the Spirit of God had made the meeting. और परमेश्वर की आत्मा वहाँ पे आई होगी। Now they call the Holy Spirit, उन्होंने फिर पवित्र आत्मा को बुलाया who will go and give this message to the world. कि जाओ और दुनिया में जाके वचन सुनाओ। In that meeting, उस मीटिंग में Joseph and Mary was chosen यूसुफ और मरियम का चुनाव हुआ होगा to lead the work of Jesus on कि earth. वो यीशु मसीह को बड़ा करने में सहायता देंगे। Now the meeting was done in heaven. तो मीटिंग स्वर्ग में हुई होगी। The man will say, this message will have come to us first. तो आदमी कहने की नहीं, ये संदेश पहले हमारे पास आना चाहिए। The man will argue, we are the king, we are the prime ministers. This message should come to our office first before you give it to a woman. तो आदमी बोलेंगे कि हम तो राजा हैं, हम प्रधानमंत्री के समान हैं, तो अगर कोई मैसेज आ रहा है तो पहले हमारे पास आना चाहिए, औरत के पास भी जा रहा है। Then the Holy Spirit went again. Bigoted men left Joseph and went first to a woman to give the meeting that was done in heaven. लेकिन पवित्र आत्मा ने फिर भी यूसुफ के पास नहीं गया, पहले मरियम के पास गया और उसको मैसेज सुना दिया। Men will say, why God love women so much? तो आदमी कहेंगे कि क्यों परमेश्वर औरतों से ज्यादा प्रेम Why करते हैं? all this secret, the first thing comes to them so much? कि दुनिया का जो पहला रहस्य था, मतलब यीशु का जन्म, वो भी पहले औरतों के पास आया। When you read about it, the Bible said, अगर आप बाइबल में देखें, from verse 27, it said, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Heaven have chose Joseph and Mary. पर स्वर्ग ने यूसुफ और मरियम का चुनाव किया। But the angel did not go to Joseph. पर स्वर्गदूत तो यूसुफ के पास पहले नहीं गया।
He went to Mary first. He said, मरियम के पास गया और कहा, and having come in, the angel said to her, और स्वर्गदूत जब आया उसने क्या कहा rejoice, highly favored one, कि आनंद मनाओ तुम औरत, the Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, Blessed are you among women. क्योंकि तुम आशीषित हो सारी औरतों में। Amen. Greatly favored. बहुत ज्यादा आशीषित और जिसपे परमेश्वर की तरफदारी हुई, Greatly favored. The तरफदारी blessed ones. बहुत आशीषित, The Lord is with you. परमेश्वर आपके That साथ। was the first word. ये पहला वचन था। The women, they are greatly favored. परमेश्वर ने औरतों पे ज्यादा तरफदारी रखी है, Greatly favored. ज्यादा तरफदारी। It is a man can suffer to achieve something in life, एक आदमी कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है जीवन में, but a woman may not drop a sweat on the floor to get that position. पर हो सकता है कि एक औरत बिल्कुल पसीना भी ना बहाए और उस औहदे तक अपने आप ही पहुंच जाए, They are greatly favored. क्योंकि औरतों पर परमेश्वर की ज्यादा तरफदारी होती है। What the angel said to her was the truth. क्योंकि स्वर्गदूत ने जो उससे कहा वो भी सच ही कहा। He called it the favored one. उसे कहा एक तरफदारी हुई महिला, The Lord is with you. कि परमेश्वर तुम्हारे पास है, Blessed are you among women. तुम सारी औरतों में ज्यादा आशीषित हो। 29 said, but when she saw him, she was troubled as he said, and considered what manner of greetings were these. तो 29 में लिखा है, वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। You see the heart, the soft heart the woman had. आप देखिए औरत का कितना मुलायम हृदय होता है। He began shivering वो कांपने लग गई, because he couldn't understand the message. क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती स्वर्गदूत बोल क्या रहा है। The loyalty, the humbleness of them. कि आप देखिए कितनी विनम्र थी वो। If it is a man अगर एक आदमी होता that you call the king, और जिसको आप राजा बोलते हो, I would say, come and sit down. Let's go. What do you have for me? Maybe this is good news. तो वो स्वर्ग से बोलता, अरे जल्दी बताओ क्या बताना चाहते हो। You see the pride of man. आप आदमी को घमंड देखो, You call him the favored one, the king. अपने आप को राजा बोलते हैं। Ah, you say you are my friend. अरे स्वर्गदूत तुम तो मेरा दोस्त है। Come, let's sit down and have one bottle of beer. Maybe he might give the angel one bottle of beer. Maybe he brought good news. क्या पता आदमी खुशी के अंदर स्वर्गदूत को शराब भी देता कि तू बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है। But you see the woman, he began to shiver आप देखिए, लेकिन वो जो मरियम औरत थी वो घबरा गई और कांपने लग गई, because he couldn't understand the message. क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि संदेश क्या है। He was afraid maybe something bad. वो समझ नहीं पाती क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला। She was confused. वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। The angel saw the pain. स्वर्गदूत ने देखा उसे, He saw how, humble she was. स्वर्गदूत ने देखा कितनी विनम्र थी वो। Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. तो 30 में क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। The angel saw the fear in her. तो स्वर्गदूत ने औरत के अंदर वो डर देखा। The angel did not threaten her. स्वर्गदूत ने उसे और नहीं डराया। The angel did not say, we are going to kill you. उसने नहीं कहा कि हम तुझे मारने आए हैं। The angel did not say you are going to die. ये भी नहीं कहा कि तू मरने वाली है। The angel did not use bad words on her. स्वर्गदूत ने कोई भी बुरा शब्द उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया। He did not say, you stupid woman. ये भी नहीं कहा कि तू बेवकूफ औरत। He did not say, you idiot. ये भी नहीं कहा कि तू इडियट है। The word will make her to be afraid. लेकिन फिर वो क्यों डर रही थी? He used a nice words. उसने तो अच्छे ही शब्द इस्तेमाल किए Favored one, dear. कि अनुग्रह वाली औरत, The Lord is with you. परमेश्वर तेरे साथ है। It's a good morning. But still, she was afraid. पर फिर भी वो औरत ये सुनकर भी घबरा क्यों गई? Afraid of what? किस चीज से डरी थी? That is the question. ये प्रश्न है। What was she afraid of? तो वो औरत किस चीज से डर रही There थी? was no sign of threat from the angel. स्वर्गदूत ने उसको घबराया या डराया तो बिल्कुल Nobody भी नहीं। was threatening Mary. तो क्यों जब तक घबरा नहीं रहे थे तो It क्यों वो was डर a रहे? nice word. It was a good words that he brought to her. तो स्वर्गदूत ने तो अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल किया, Still, she was afraid फिर भी वो डर रही थी। to see the beautiful heart they have. और स्वर्गदूत ने उसके सुंदर हृदय को देख के बहुत And the डरा। angel knew how afraid she was. स्वर्गदूत को पता था कि वो कितनी घबराई हुई है। She said to her, I brought good news to you. स्वर्गदूत ने कहा, मैं अच्छी खबर लाया हूँ तेरे पास, You shouldn't be afraid. तो डर क्यों रहे हो? But let's see what happened. He said, फिर क्या हुआ? the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. स्वर्गदूत ने कहा,
भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। 31 said, and behold, you will conceive in your womb, और तू गर्भवती होगी, and bring forth a son, एक पुत्र को जनेगी, and you shall call his name उसका नाम Jesus. यीशु रखना। 32 said, he will be great and will be called the sons of the वो highest. महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, And the Lord God will give him the throne of his father और David. प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन And he उसको will देगा, reign over the house of Jacob forever. और वह याकूब के घराने पर सदा विराजमान And of करेगा, his kingdom there will be no end. और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। Then Mary said to angel, तो मरियम ने क्या कहा स्वर्गदूत से? how can this be, since I do not know a man? पर ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। The sincerity continues. आप देखिए क्या हुआ। Look out. The angel was saying, this child you are going to born will be more than the prime minister. And he said the throne will be forever. तो स्वर्गदूत ने क्या बोला कि जब बच्चा तेरे पैदा होने वाले प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होगा, उसका राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा। You said all these things to a man. ये सब चीजें आप एक आदमी को बोल के दिखाओ। A man will not ask you, how is it possible? आदमी ये भी नहीं पूछेगा कि कैसे होगा, खुश हो जाएगा। A man will tell you, how, if it is not possible, we are going to make it possible. आदमी बोलेगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। A man will tell you, I have a friend. If it is not possible, I will mobilize my friend. We are going to make it possible. आदमी बोलेगा नहीं होगा, रुको रुको, मेरा दोस्त है, उसको बुलाता जरूर होगा। You will see the pride of a man. आप एक आदमी का घमंड देखें। You mean I will have a prime minister forever? मेरे पास एक प्रधानमंत्री आने वाला जो हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा। A man will tell you that we're in the local store. Let's go to the 5-star hotel and drink beer. वो कहता है अरे वाह कितनी खुशखबरी, चलो रेस्टोरेंट में चलते He हैं, will bring all the champagne. He will pop all the champagne. और शैंपेन उड़ाएगा। You will see the pride. आप उन्हें घमंड He will देखें। say, close all the whole restaurants. And he will think, oh, I'm going to control the whole world. वो इतना खुश हो कि अरे मेरे पास कुछ ऐसा आने वाला है जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। A man will not even ask you, how is this going to be possible? आदमी ये भी नहीं पूछेगा कि ये चीज मुमकिन कैसे होगी। That is what God saw in them. परमेश्वर ने और आदमियों में यही चीज देखी। The sincerity of their heart. उन्होंने देखा कि औरतों के अंदर कितनी सिंसियरिटी होती है। You said the truth. I don't have a husband. How is it going to be possible? और उस औरत ने बोला कि अरे मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा पति नहीं है, तो कैसे मेरा बच्चा होगा। A man will start to plan ahead of you. लेकिन आदमी तो अभी तक कहाँ सोच चुका होता है। If you say a man you don't have a husband, he said, don't worry, I will arrange. I will arrange 2 wives. अगर आप एक आदमी को बोले कि तुम्हारे बच्चा होगा, वो ये नहीं सोचे कि पत्नी अरे रुक जा एक नहीं दो लेकर आऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। He said, how are you going to arrange? Don't worry, I will pay the money. वो कहता अरे तेरे पैसा दे के आऊंगा, चिंता मत करो। You know, men have something that, they feel that they knows everything. आदमी को हमेशा ये लगता है कि मुझे सब पता है। The men feel that they're so wise and they're so strong. उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। But in their wiseness, they are foolish. लेकिन अपनी समझदारी में वो बहुत बेवकूफ होते God हैं। saw it from above. परमेश्वर ने ऊपर से ही देख लिया And he knew और उसे पता था that if I hand over the resurrection of man in my hand, the birth of Jesus, it will never succeed. और उन्होंने समझा कि अगर मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक का काम एक आदमी के हाथों में दे दूंगा तो ये कभी भी नहीं होने वाला। God knew where to put men, the position to put men. उन्हें पता है कि किस जगह पे आदमी को रखना है। When it comes to go and preach in Nineveh, कि जब परमेश्वर ने जोना को चुना कि नीनवे जाके प्रचार करो, anything that has to do with power, अरे कुछ भी काम शक्ति के बारे में है, God will put men in परमेश्वर charge. आदमी को आगे रखेगा। Anything that have to do with king and war, कहीं पर भी लड़ाई होगी, God will put men in charge. परमेश्वर कहता है आदमी तू पहले आगे जा। Because they think they are only physical, they have power, क्योंकि आदमी को लगता है कि उनमें ताकत बहुत ज्यादा है, but they don't have brain. पर दिमाग नहीं। Amen. Men don't have brain at all. बिल्कुल भी दिमाग नहीं। Because they saw woman, after all, if she talk, I beat her. उन्हें लगता है कि अगर औरत ने मेरे सामने आवाज उठाई तो मैं उसे थप्पड़ मार के चुप कर सकता हूँ। That is what is that, after all, I can beat her. क्योंकि आदमी को यही लगता है कि मैं थप्पड़ मारने के लिए ही बैठा हूँ। But God knew from heaven that women are so bad. लेकिन परमेश्वर को पता है कि औरतों में बुद्धि होती है। That's it. If the birth of Jesus could be carried to make it successful, तो अगर परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह का जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक सफल हो, give it to a woman. उन्होंने कहा कि औरत को पकड़ना पड़ेगा, आदमी के बस की नहीं। Because a man is ready
to carry the work of the birth of Jesus. कि उन्हें पता था कि यीशु मसीह का काम तो एक आदमी को करने, But a man on the way, he will stop to do something. अगर वो आदमी काम शुरू तो कर देगा लेकिन बीच में जरूर रुक जाएगा। A man can stop on the way and say, hey, Jesus, I have carried you so much. Let me buy cigarette. 2 minutes, I was supposed to come. A man who is there smoking cigarette. अगर एक आदमी को परमेश्वर जिम्मेदारी देता है यीशु मसीह को बड़े करने तक की और परेशानियों को झेलने की, तो वो आधे रास्ते में रुक जाता है कि रुको जरा, मुझे कुछ खाने पीने दो, उसके बाद दोबारा काम शुरू करते हैं। A man can say, oh, I can't see clearly if I don't drink small. Let me take small whiskey and drink. तो आदमी बोल सकते हैं कि अगर मुझे सही से काम नहीं हो रहा है, थोड़ा शराब पीने दो, थोड़ा ठीक फील करूंगा, फिर Maybe he will throw away the book about the birth of Jesus. हो सकता है वो यीशु मसीह के जन्म से लेके काम को अच्छे से करता ही नहीं। But when you give the secret to a woman, लेकिन अगर आप कोई रहस्य एक औरत को देते हैं, maybe he will put it here and hide it. लेकिन एक औरत को संभाल के रखें, Or he will find it here and hide it. वो कहीं पे छुपा के रखेगी। But a man, you will use it and go like this. लेकिन एक आदमी ऐसे सोड़ाएगा And somebody will come and take it off. और कोई भी आदमी उसे ले लेगा। You will never even know that a woman is holding the secret. आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि औरत के मन में कितने रहस्य होते हैं, Because the value is so much. क्योंकि उनके लिए वो चीजें बहुत कीमती होती हैं। Men take things so granted so much. लेकिन आदमी हर एक चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, Because they trust in their power. क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा ताकत है, Nothing will happen. पर कुछ नहीं होता। That's the language of men. ऐसा आदमी कहते हैं, Nothing will happen. अरे कुछ नहीं होने वाला, Don't worry, nothing. अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत। That is the language. आदमियों की यही भाषा है, Overconfident. ओवर कॉन्फिडेंस, That they have everything. We can do everything. क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। When you say, "Man, please close the door," अगर आप एक आदमी से बोले कि दरवाजा बंद somebody कर will दो, come inside and take something. अरे कोई आदमी कुछ उठा ले जाएगा। Why I'm here? I am here. Nothing will happen. Leave the door open. But the woman will say, "Close the door." I say, "What? I'm here. If I'm not here, you can close the door. But I'm here. Don't close it." We are overconfident ourselves. We believe that we can do everything the way we तो want. अगर एक आदमी को आप बोलेंगे कि ये दरवाजा बंद कर दो, तो आदमी बोलेगा क्यों बंद कर दो, मैं घर में तो हूँ, जब मैं घर में नहीं हूँ मैं कब दरवाजा बंद कर दूँ? But God knows it from above. लेकिन परमेश्वर को पता है स्वर्ग से That these foolish people that I created first, they are so foolish. कि जिन बेवकूफ लोगों को मैंने बनाया है वो बहुत बेवकूफ है, When they did the meeting, they know that men are so foolish in life. क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। I'm telling you, men are so foolish sometimes. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि आदमी बहुत बेवकूफ You होते are हैं, confused. Because if it is not, God will not even hand the secret of the birth of Jesus to a woman. क्योंकि अगर परमेश्वर को नहीं पता, ऐसे पता होता, नहीं पता होता कि आदमी ऐसा नहीं कर सकते, तो But the Bible said it. It was Joseph and Mary was there. But the angel left man. बाइबल बताती है कि यूसुफ और मरियम दोनों थे, पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत यूसुफ के पास नहीं, मरियम के पास गया I went to woman to give him the secret. और उसको जाके रहस्य बताया जो उसने अपनी मृत्यु तक किसी को नहीं बताया। That is what is happening today. और आज यही होता है। And he asked, I think we stop in 33, 32. Okay, 34. And he said to the angel, how can this be since I do not know a man? तो मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। 35. The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of तो God. 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 36 says, let me before I read to 38. 36 says, now indeed Elizabeth, your relative, also conceived a son in her old age, and this is how the 6th month, and now is the 6th month for her who was called barren. For with God nothing will be possible. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be done to me according to your word. तो हम पढ़ते 36 और देख तेरी कटुम्बनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जब तक स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Humbleness to the last.
आप देखें अंत तक वो विनम्र रही। She was so patient. उसमें कितना धीरज था He was so patient to hear the message to the last. कि अंत तक वो परमेश्वर के संदेश को सुनती रही। That is also what God considered. और परमेश्वर यही चीज देखते हैं Because He knows that men will not like to see the message to the end. क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी अंत तक संदेश सुनेगा ही नहीं। Men can tend to enjoy. I have heard you, no problem. I know what you said. I know I have heard you. No, go. You know, men are so impatient. They know what the angels want to say. तो आदमी में धीरज कम होता है तो हो सकता है परमेश्वर अगर यूसुफ को बोलते तो वो पहली दूसरी लाइन की बातें बोलता हाँ मुझे पता है आगे क्या बोलने वाला सुन लिया मैंने हो गया They believe that they know the conclusion of what you are about to say. आदमी को लगता है कि आप जो बोलने वाले हैं उनका अंत भी आप उनको पहले से ही पता है। But Mary was listening to the last. लेकिन मरियम अंत तक संदेश को सुन रही थी। Even when the angels gave an example about her sister Elizabeth. जब स्वर्गदूत ने एलिशिबा का भी उनको उदाहरण दिया। Even the last. अंत तक She said to वो सुनती रही और कहती रही okay, let it be done according to your own will. कि ठीक है जैसा आप चाहते हो वैसा ही And not mine. और मेरी इच्छा पूरी ना हो। Submission to the last. कि अंत तक वो समर्पण में रही। Humility to the last. विनम्र रही। And that is what the Spirit of God knows. और परमेश्वर की आत्मा को ये चीज पता थी। The Spirit, the submission to the last. He said to the angel, I don't know, I believe what you said, I have no power, but let it be according to you. तो उस औरत ने बोले ठीक है मुझे समझ तो नहीं आया जो आपने बोला लेकिन फिर भी जो आप चाहते हो वही हो। Yes, if it is men who will argue before the angel will leave. और अगर कोई आदमी होता तो स्वर्गदूत के जाने से पहले बहस करने Who लग will जाता। ask angel, who will be in control? अरे कौन संभालेगा? Man will ask, who will be in control? आदमी बोलता कौन संभालेगा उस यीशु को? If I'm not in control, I am not joining you. अगर कोई मेरे साथ नहीं खड़ा तो मेरे बस की तो नहीं। Men can say that to an angel. आदमी ऐसा स्वर्गदूत से कह सकता था। If I am not in control, I am not going to join. अगर मेरे को आप पावर नहीं दे रहे तो मुझे क्यों लेकर जा रहे हो आप? You go and burn your Jesus, but not me. अपने आप को जाके यीशु को संभालो मुझे। You know, we are mad with power. आदमियों में सामर्थ्य शक्ति We are होती है। mad with power. एक आदमी में शक्ति होती है। It is only men that can challenge an angel. एक आदमी ही है जो स्वर्गदूत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। That is what God sees. परमेश्वर ने चीज देखी। And don't be jealous when God loves women. और आप जलन मत करना कि परमेश्वर अगर औरतों से ज्यादा प्रेम रखता है। Because their heart is the heart that God loves. क्योंकि उनका हृदय ऐसा होता है जो परमेश्वर प्रेम रखता है। Let's go to the last verse I want to tell you और again. आखिरी वचन जो आज हम पढ़ने वाले हैं Let's go to Matthew chapter 28. मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय। Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Read from 1. मत्ती 28। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटने ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप आया हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। Read verse 8. उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाली के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरों में कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। Amen. Again, the secret, another secret of the resurrection of Jesus was given to a woman. एक और रहस्य जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का था वो भी पहले औरत को ही दिया गया। To see the trust that God has in them. आप ये देखें कि परमेश्वर औरतों पे कितना भरोसा कर सकते हैं। Nobody knew what Jesus was. किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। Nobody knew when Jesus, the time he will rise. किसी को नहीं पता था कि यीशु मसीह कब जिंदा हो जाएंगे। It took 3 days. 3 दिन लगे। And again, the angels, the choirs, every of the Spirit of God, they went to meet him on earth, in heaven. और आप देखिए कि एक स्वर्गदूत जमीन पे आया और परमेश्वर से मिलने। And after making the meeting, और मीटिंग के बाद
every man followed when Jesus was about to crucify. जब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो सारे आदमी उनके साथ थे। It was Joseph of Arimathea that took the body of Jesus and buried. तो जब क्रूस पे चढ़ाया गया उनके सारे चेले भाग गए यहुन्ना को छोड़ के, लेकिन लास्ट पे यूसुफ नाम का एक बंदा था जो उनको दफनाने में खड़ा हुआ। Men contributed a lot in the crucifixion of Jesus. तो यीशु मसीह के दफनाए जाने के अंदर एक आदमी का योगदान था। One man took responsibility to bury Jesus. तो यूसुफ नाम के एक आदमी ने ये जिम्मेदारी ली कि यीशु मसीह को मैं अपने गुफा में दफनाऊंगा। Still yet, the secret, the message of the resurrection of Jesus was given to a woman. लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का रहस्य एक औरत को दिया गया। That is to confirm, even unto death, the foolishness of man. तो इसका मतलब कि उन्होंने बताया कि अंत तक उन्होंने कहा कि आदमियों को बेवकूफ समझा परमेश्वर। Even from the birth of Jesus, God wasn't even, God knew that even man was also foolish. कि यीशु मसीह को भी अंत तक पता था कि आदमी बेवकूफ होते हैं। Then that's why he said, तो फिर उन्होंने क्या कहा? the resurrection of Jesus कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान was given to a woman. उन्होंने उसका रहस्य एक औरत को बताया। I was still asking God, why all this? No man, no single secret was given to us, even about these important things. तो हमारे भाई ने परमेश्वर से प्रश्न पूछा कि क्यों परमेश्वर आपने हर एक रहस्य औरत को ही बताया, आदमी को एक भी नहीं बताया? Even Satan was connected to women. Even the God himself was connected to women. कि शैतान भी औरतों के साथ ज्यादा कनेक्टेड है और परमेश्वर भी ज्यादा कनेक्टेड है। I will ask myself, even if Satan connected with men, went to men first, I would have said even the bad spirit went to men. Even the bad spirit was afraid even to connect with men. तो इसका मतलब एक बुरी आत्मा जो कि शैतान की है वो भी आदमी के पास नहीं गई कुछ सोचकर। The bad spirit knows, Satan knows. शैतान को पता था। What am I doing with foolish men? कि इस बेवकूफ आदमी के साथ मैं क्या करूं? Satan sees men as foolish. शैतान ने भी आदमियों को बेवकूफ समझा। He's inside the bush hunting for antelope. क्या कर रहा है वो? शिकार कर रहा है बेवकूफ। He's inside the bush hunting for bushmeat. अरे झाड़ियों में झुका हुआ मीट ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है। That is what Satan sees. शैतान ने यही देखा। He's nothing. अरे किसी काम का He's just a bushmeat बस eater. खाना ही ढूंढता रहता है। Let me go to important people. चलो मैं समझदार लोग के पास Let me जाऊँ। find her wife. चलो उसकी पत्नी के पास जाता हूँ। Just following women. अब औरतों के पीछे जाओ। Okay, we say it's Satan. Maybe he don't like men. आप कह सकते हो कि ठीक है शैतान को क्या पता आदमी ना I was पसंद आए। asking, what the angel, God, everybody loves women. तो हमारे भाई ने कि शैतान, स्वर्गदूत, परमेश्वर हर कोई औरत के पीछे क्यों जा रहा है? The secret of the birth of Jesus to women. यीशु मसीह के जन्म की रिस्पांसिबिलिटी भी औरत को। Even men single-handedly buried Jesus Christ. कि सिर्फ एक आदमी ने यीशु मसीह को दफनाया। At least he could have even tell us. कम से कम जिसने दफनाया उसको तो यीशु मसीह बता देते कि मेरा पुनरुत्थान होने वाला है तीसरे दिन। Again, it went to पर women. उस पर भी भरोसा नहीं किया। If you don't know that the pillar of life, you have to know it today. तो अगर आपको जीवन का बुनियाद या खंबा नहीं पता तो आज पता कर लो कि क्या है। We are just the building up. तो आदमी सिर्फ ऊपर की बिल्डिंग बना सकते हैं। When you go outside here, you look, 4-story building. आप बाहर निकलते हो देखते हैं 4 माले की बिल्डिंग तो है। That is how men we are. और बाहर आदमी भी ऐसे ही होते हैं। We are all this 25-story building. अरे 25 माले की बिल्डिंग के जैसा एक आदमी। So good, so magnificent. कितना बड़ा, कितनी ज्यादा ताकत है इसमें। Very tall, कितना लंबा, very fearing. कितना ज्यादा डरा देता है। But go to the basement, the pillars are लेकिन women. बेसमेंट में जाओ तो देखो औरतें ही काम करती हैं। Cut it off, the whole building was set. अगर आप बुनियाद को काट दो तो ऊपर की इमारत खत्म। That is what we don't understand. और ये चीज हम नहीं समझते। But God knew it. पर परमेश्वर को पता था। But sometimes some people say, oh, God is so partial. पर कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर तो भेदभाव करते But हैं। He is not. पर परमेश्वर नहीं करते। He knows the reason why. उसे पता है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। When you see it the way God sees it, अगर जैसा परमेश्वर देखता है आप भी वैसा ही देखें। today you will come, you will respect every woman that you see. तो आज आप जिस भी औरत को देखते हैं आप उसकी इज्जत करने लगते You हैं। will respect every mother. आप हर एक माता की इज्जत करने You लगते will हैं। respect every woman that comes along your way. जो भी आपके रास्ते में औरत आती है उसकी इज्जत करेंगे। Because you don't see the important role that they play. क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं कि उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है। God went and
and taught us, look, if you want to succeed in life, परमेश्वर ने भी कहा कि अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, if you want to be called a successful person, अगर आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, bring your woman closer to you. तो अपनी औरत को अपने पास लाओ, Bring your wife closer to you. अपनी औरत को, अपनी बीवी को अपने Bring पास your लाओ, mother closer to you. अपनी माता को अपने और करीब लाओ, There comes your success. तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। Once they are not with you, अगर एक बार आपकी पत्नी या आपकी माता आपसे दूर हो गई, you will be a vagabond all your life. तो आप पूरे जीवन बस घूमते ही रह जाएंगे You will be a wanderer. और आप सिर्फ घूमते रह You जाएंगे, will wander from here to here to here to एक जगह here से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, आप बस यही करेंगे until the day you die. और एक दिन आप मर You जाएंगे। will never even find any solution in your life अपने जीवन में किसी परेशानी का हल नहीं ढूंढ पाए, because you will be confused. क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे। Jesus Christ knew the truth that we don't know. यीशु मसीह को वो सत्य मालूम था जो आज हमें नहीं पता है। It took 3 days 3 दिन लगे when Jesus died and when he rose. जब यीशु मरे और तीसरे दिन जिंदा हो गए। I know that the God and his cabinet would have debated this. तो हमारे भाई कह रहे हैं, मुझे पता है कि यीशु मसीह के सारे मंत्रीगण इकट्ठा हुए They would have होंगे। seen the sacrifices that men played. उन्होंने देखा कि आदमियों ने किस तरह के बलिदान किए हैं। They would have said, if the 12 disciples was men, उन्होंने कि अगर चाहे 12 चेले लड़के ही थे, आदमी ही थे, they fought side by side with Jesus. जो यीशु के साथ चलते थे, Peter followed Jesus everywhere. पतरस ने यीशु के पीछे हमेशा चला। They have their sword. They fought the Jews. और जब यहूदी लोग आए तो पीटर ने, पतरस ने उनका कान भी काट They दिया। helped Jesus preach the gospel. और यीशु मसीह को सारा सुसमाचार सुनाने में पतरस ने बहुत मदद They करी। were with Jesus when he was carrying the cross. और जब क्रूस पे लेके जा रहा था तो पतरस कहाँ था? No women helped Jesus to carry the cross. किसी ने, औरत ने भी यीशु को मदद नहीं करी क्रूस उठाने में। I mean the physical cross. अगर वो बात करें क्रूस, लकड़ी वाली क्रूस की नहीं, लेकिन It was जिम्मेदारी, men that when Jesus got tired, it was men that helped Jesus to carry the यीशु cross. मसीह की जिम्मेदारियां आदमियों ने उठाई, To tell you that God knows where to place men. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आदमियों को क्या जिम्मेदारियां देनी है। When it comes to something that has to do with strength, अगर कोई भी चीज सामर्थ्य से रिलेटेड है तो परमेश्वर आदमियों को चुने। when you want this building to be put down, वो कह रहे हैं बिल्डिंग बनानी है तो आदमियों को चुनना है। God knows that He will only place it in the hands of men. उन्हें पता है कि आदमी ही बिल्डिंग को बना सकते हैं। Because He knows where we can fit in. उन्हें पता है कि किस जगह पे आदमी फिट होंगे। He knows where our strongness उन्हें lies. पता है कि उनकी मजबूती, उनकी ताकत He कहाँ पर है। knows the best department to fix men. परमेश्वर को पता है कि किस डिपार्टमेंट में आदमियों को रखना है। If men occupies all the whole departments, लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट्स पे आदमी ही आ जाए the director on the top will come from women. तो डायरेक्टर तो औरत ही होगी, Because God knows that very well. क्योंकि परमेश्वर को पता है ये अच्छे से। God knows how important it is. परमेश्वर को पता है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Yes, we have to see it from ourselves. हमें अपने आप ही देखने की जरूरत है। I thought about this. इस बारे में हमारे भाई ने भी सोचा, I was thinking, even from Genesis, तो हमारे भाई ने कहा कि उत्पत्ति से I लेकर was thinking also in the New Testament. और नए नियम में भी This is a very important secret तो ये बहुत ही जरूरी रहस्य है that involve the angels, the Holy Spirit of God. कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने भी काम किया। I was asking, where are the Moses? Where are the Joshua? Where are the Elijah? तो पूछते थे कि मूसा, यहोशू, एलीजा कहाँ है? Where are the Abraham, Isaac? अब्राहम, इसहाक कहाँ है? Where are they? कहाँ है वो? They are the great men of God. वो परमेश्वर के बड़े बहुत सामर्थी जन थे। All these secrets handed over to them. परमेश्वर ने उनको रहस्य दिए। Why not the mantle, the leadership of the birth of Jesus given to them to carry it along? लेकिन जब परमेश्वर ने पुराने नियम में आदमियों को जिम्मेदारी दी, नए नियम में रहस्य की जिम्मेदारियां औरत को क्यों दी? Because God knows our limit. क्योंकि परमेश्वर को पता है आदमियों की सीमा क्या है। God knows. Look at Moses. परमेश्वर ने कहा ठीक है, मूसा को देखो, He was about to reach the promised land. वो तो परमेश्वर की वचन दी जगह पे जाने ही वाला था And they made him angry. और उसे गुस्सा आ गया। He took the secret God gave him. परमेश्वर ने उसको रहस्य दिया था उठाने का And he broke it. और उसको उस डंडी को 2 बार मार दिया। If it is a woman, he will keep that secret so safe. अगर एक औरत होती तो ऐसा नहीं करती। No, God gave me this. परमेश्वर ने अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, Even if I'm angry, I अगर मुझे shouldn't break गुस्सा it. भी आ रहा है तो मुझे ये नहीं करना है। But Moses got angry. लेकिन मूसा को गुस्सा आया, He said, who is God? I don't care. उसने परमेश्वर है कौन, मैं तो करूंगा ऐसे। You know, he lost everything. और सब कुछ खो दिया He उसने। said, God, even if this is your time, I don't care. उसने परमेश्वर अगर आपने कहा भी एक बार, मैं तो 2 ही बार करूंगा। And he hit it on the floor और उसने उस पत्थर को 2 बार डंडी से मारा and gave victory to Satan. और शैतान जीत गया।
There is victory to Satan. शैतान को सफलता मिल He गई didn't reach the promised land. और वो परमेश्वर की वचन की He जगह तक forgot नहीं what पहुंचा। he fought. He forgot what he वो fought. भूल गया कि वो किस लिए लड़ रहा है, उस वादे की जगह तक पहुंचने की लड़ाई कर He रहा was था about to reach और to वो the पहुंच promised नहीं पा रहा land. था और उसको दूर से देख भी पा रहा था, But something made him angry. लेकिन उसे गुस्सा आया He forgot the work that और वो God भूल gave him. गई कि किस काम के लिए मैं अब खड़ा He हुआ forgot the importance of what he was और वो carrying. भूल गया कि वो महत्व था और क्यों मैं लड़ाई कर रहा हूँ अभी तक, And he broke it. और उसने 2 बार मार दिया And God lost. और परमेश्वर का ठीक है। That's what Jesus Christ saw. That was God's saw. अब परमेश्वर Now, when you want to be successful in life, अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए take a woman तो एक औरत को ले and hand it over. और अपना रहस्य उसको दे दे, It will be successful. तो वो जरूर सफल हो पाए। And when you measure success, does not mean that it must be 100% of women, तो आप अगर सफलता को नापते हैं तो ऐसा नहीं कि 100% औरत ही होती है, but it involves many women लेकिन बहुत ज्यादा औरतें होती हैं, that they are more to achieve whatever you want them to क्योंकि achieve. आप जो भी पाना चाहते हैं उसमें औरतें ज्यादा योगदान डालती हैं। We are celebrating Mother's Day तो today. जैसे आज हम माताओं का दिन मना रहे हैं, Today is a very beautiful day. तो आज एक बहुत सुंदर दिन है। If you have a mother at home, अगर आपके पास एक माता है जो घर में है या यहाँ पर है, if your mother is still alive, और अगर वो अभी भी जिंदा है, if you have been treating your mother like a queen before, अगर आप अपनी माता को पहले रानी के रूप में बर्ताव कर रहे थे treat your mother like a king and a queen, और आज से एक राजा के रूप में बर्ताव, because they are so wonderful. क्योंकि वो बहुत अद्भुत है, They are so great. वो बहुत महान You है, will not understand. आप नहीं समझेंगे। But if God above, अगर परमेश्वर जो ऊपर है, if the Spirit could see this, अगर परमेश्वर की आत्मा ये देख सकती, if the Spirit could understand the power of women, परमेश्वर की आत्मा अगर औरतों के सामर्थ्य को देख सकती है, if God could understand how special they are made, अगर परमेश्वर ये समझता है कि औरतें कितनी अद्भुत रीति से if बनाई God गई हैं, could understand the work that they do, परमेश्वर अगर ये समझता है कि औरतें कैसा अद्भुत काम करती हैं, why can't we clean our eyes and remove our तो glasses क्यों हम अपनी आंखें साफ करके अपनी आंखों को चश्मा नहीं हटा सकते and look properly और ध्यान से देखें to understand why God does this? कि समझे कि क्यों औरतों को परमेश्वर ने इतनी महत्वता दी है, Why God makes them so special? परमेश्वर ने क्यों उन्हें इतना अद्भुत रखा है। You should stand up today तो आज आप देखें and see the importance of और women समझे कि परमेश्वर ने औरतों को कितनी महत्वता दी है and celebrate them. और आज का दिन मनाएं, They are so powerful. क्योंकि उनमें बहुत सामर्थ्य है, They are the pillar of this world. क्योंकि वो इस दुनिया की बुनियाद है। Without women, बिना औरतों के every human being will fade away. कोई भी इंसान होगा वो फेड हो जाएगा, I खाली हो don't think जाएगा। I say it. If women are not with men, तो हमारे भाई कह रहे हैं अगर औरत आदमी के साथ ना खड़ी हो the world will be extinguished. तो दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। Not by any physical something, ऐसा नहीं है कि दुनिया देखने में जो है, but by nature of our being. क्योंकि आदमियों का जो बर्ताव, जो उनका व्यवहार है, In less than 100 years, there will be no living being on this 100 earth. साल भी बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही दुनिया खत्म हो जाएगी। That we can project, that we can live from generation to generation. क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ियां भी आप नहीं रह पाएंगे, And because of these women, सिर्फ औरतों की वजह से ही पीढ़ियां बढ़ती हैं, they are so special. क्योंकि वो बहुत अद्भुत है। God is with them. परमेश्वर उनके साथ है। So every woman here will wish you happy Mother's Day. तो जितनी भी औरतें यहाँ पर हैं उनको हैप्पी मदर्स डे हमारे भाई So को। all women, we want you to stand up. तो सारी औरतें खड़ी हो जाएं, All एक बार women stand up. सारी औरतें खड़ी हो जाएं। All women stand up. Please, I want a special song for them. Where is the Simon? Please come. I want you to give a special song for women. That God will always bless them. That God will always use them. कि परमेश्वर उनको आशीष दे और हमेशा उनका इस्तेमाल करे, A peaceful family lies in their hands. क्योंकि एक शांति वाला परिवार एक औरत के हाथ में A है। successful family lies in their hands. एक सफल परिवार एक औरत के हाथ में, A good child, a good son, a successful daughter, a successful son lies in their एक hands. सफल बेटा या बेटी भी एक औरत के हाथ में ही है। Men are always busy in the bush hunting meat, एक आदमी तो हमेशा शिकार में या काम में ही व्यस्त रहता है, but they are at home looking for all things. लेकिन घर में ही हमें एक चीज मिलती So है, without them, nothing works. तो Amen. उनके बिना और कुछ भी काम नहीं करता। This song is for all the mothers तो here सारी and all औरतें over जो the यहाँ पर world. हैं और जो बाहर भी हैं, We appreciate you and we say God bless you. हम आपकी सराहना करते हैं और कहते हैं We परमेश्वर pray आपको for आशीष दे, blessings. We pray for long life. आपके लंबे जीवन और आपके आशीषों के And लिए we प्रार्थना ask God करते to हैं bless your और families. परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष दे। Amen. आमीन। Say
all sit down. हम May सब God बैठ bless जाएं। us. And परमेश्वर bless आप all the सबको brothers आशीष दे today. और सारी In औरतों को Jesus आशीष Christ's mighty दे। name we यीशु मसीह pray. के सामर्थ्य नाम में। Amen.